हाय दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रौरकेला की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन नोटिस आ चुकी है। ये एडमिशन स्प्रिंग यानी जनवरी 2026 सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस उन सभी एलिजिबल कैंडिडेट से इनवाइट किए गए हैं जो अपने रिसर्च के पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एडमिशन में प्रेफरेंस उन एप्लीकेंट्स को मिलेगा जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं या जिन्होंने एक्सटर्नल फेलोशिप्स जैसे कि जेआरएफ नेट क्वालिफाई किया है। लेकिन फेलोशिप के बिना भी एडमिशन पर विचार किया जा सकता है और एक्सटर्नल फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स को तो विशेष रूप से एनकरेज किया गया है अप्लाई करने के लिए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और उनके इंडिकेटिव ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च अवेलेबल है। 1. बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग BM। इसमें बायोमैकेनिक्स एंड बायोट्रांसपोर्ट, बायोमटीरियल्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, medical electronics and instrumentation, cell and molecular engineering, bioprocess engineering, agricultural and environmental biotechnology, energy and environment, medical image and signal processing और AI और ML in biomedical engineering शामिल हैं। 2. Civil engineering CE। यहाँ पर structural engineering, geotechnical engineering, water resources engineering, environmental engineering, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रिसर्च किया जा सकता है। 3. केमिकल इंजीनियरिंग CH। इसके एरियाज में कैटालिसिस एंड रिएक्शन इंजीनियरिंग, एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन मटेरियल्स, प्रोसेस सिस्टम्स इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड पोल्यूशन कंट्रोल, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, नैनो मटेरियल्स एंड एडवांस्ड मटेरियल्स, सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, separation and purification, fluid dynamics, fluidization engineering, molecular simulations, targeted drug delivery systems, computation fluid dynamics, AI or ML in chemical engineering, immunosensors engineering, microfluidics, semiconductor devices, process simulation and modeling, process optimization or intensification or design and development, hydrogen energy, carbon capture and utilization, polymer science and engineering, waste to wealth, wastewater treatment, life cycle assessment, sustainable process design और machine learning है। 4. ceramic engineering CR। यहाँ पर advanced materials for energy storage, nanomaterials for hydrogen production and storage, advanced biomimetic materials for high strength applications, environmental ceramics, luminescent nanomaterials, advanced refractories for green steel, structural ceramics, electroceramics, glass और बायोग्लास जैसे फील्ड्स अवेलेबल हैं। 5. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CS। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वायरलेस एडहॉक नेटवर्क, cloud and fog computing, wireless sensor network, VANET, flying ad hoc network, computer vision, AI for digital healthcare, signal and image processing, IoT and cloud computing, healthcare system, resource optimization, image processing and ML, IoT-based healthcare, intelligent transportation system, WSN, IoT authentication, cloud security, cryptography, low power VLSI, computer architecture, digital microfluidics, theoretical computer science, NLP, quantum computing, hardware security, deep fake, signal or audio processing, deep learning, time series forecasting, soft computing, computer vision for underwater images, biomedical image processing, data mining और graph clustering शामिल हैं। 6. केमिस्ट्री CY। यहाँ के एरियाज हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंथेसिस, फिजिकल ऑर्गेनिक, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, कैटालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटालिक, सॉलिड स्टेट, मटेरियल केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल्स, कैटालिसिस,
and physical chemistry, biophysical, computational and theoretical chemistry, protein chemistry, spectroscopy, supramolecular fluorescence chemistry. 7. Electronics and Communication Engineering (EC). इसमें communication, AI और ML, computer vision, instrumentation, RF and MW system, VLSI, IoT, signal and image processing, brain-computer interface, SIP, radar signal processing, semiconductor device, nanoelectronics, optoelectronics, computer vision और deep learning है। 8. Electrical engineering EE, यहाँ पर power systems, high voltage engineering, microgrid control, operation and cyber security, power electronics and drives, active power filter, renewable energy and EV, digital signal or image or video processing, communication and signal processing, control and automation, consensus control of multi-agent system, ML-based control applications, semiconductor device, battery, hydrogen storage और सुपर कैपेसिटर पर रिसर्च हो सकती है। 9. अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज ER, इसके रिसर्च एरियाज हैं जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, क्लाइमेट साइंसेज, फिजिकल ओशनोग्राफी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, एनवायरमेंटल साइंसेज और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स। 10. फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग FP, यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, computer aided and IoT based food processing, AI and ML in food processing, non-thermal processing, food equipment and process design, food packaging and storage engineering, health and functional food, microwave processing and food sterilization, extrusion processing, dairy engineering and technology, product development and ingredient innovation और agricultural and food waste valorization जैसे areas available हैं। 11. ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज यानी HS में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉपुलेशन स्टडीज़ और साइकोलॉजी हैं। 12. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यानी ID में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, वर्चुअल रियलिटी, सेफ्टी बाय डिज़ाइन, ह्यूमन फैक्टर्स एंड एग्रोनॉमिक्स, अकूस्टिक्स, अंडर वाटर ग्लाइडर, अंडर वाटर अकूस्टिक्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यूज़र काउंटर डिज़ाइन, डिज़ाइन इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन फॉर वेलबींग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, AI, AR, VR, एक्सेट्रा, मैकेनिज्म्स डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ स्पेस बॉर्न स्ट्रक्चर्स और डिज़ाइन ऑफ डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर्स हैं। 13. लाइफ साइंस यानी LS में माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिल्म, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शन, मैंग्रोव इकोलॉजी, बायो रीमीडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मरीन बायोप्रोस्पेक्टिंग, ब्लू इकोनॉमी, इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू इंजीनियरिंग, रीजेनरेटिव मेडिसिन, प्लांट बायोलॉजी, ड्रग डिलीवरी, बायोएक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल, माइकोबैक्टीरिया, इम्यूनोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन और एनी अदर फील्ड ऑफ बायोलॉजी फॉर एक्सटर्नल फेलोशिप कैंडिडेट्स पर रिसर्च की जा सकती है। 14. मैथमेटिक्स यानी MA में न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन एंड एनालिसिस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, क्रिप्टोग्राफी, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रिक ग्राफ थियोरी शामिल हैं। 15. मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी ME में के ब्रॉड एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग, मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, रोबोटिक्स, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल ऑफ UAV, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पोजिट्स। 16. मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग यानी MM में AIML, extractive welding, computational and process metallurgy, archaeometallurgy and conservation of metallurgical heritage in India, computational material science and machine learning, mechanical behavior, crystallographic texture, steel metallurgy, structure property relationship, advanced characterization, tribological studies, FEM analysis in CIS, ANSYS, high entropy alloys, additive manufacturing, mechanical metallurgy, nanomaterials, nanocomposites, composite materials, powder metallurgy, physical metallurgy, rare earth alloys, corrosion, heat treatment, smart materials यानी sensor and actuator processing और surface engineering में research हो सकती है। 19. माइनिंग इंजीनियरिंग यानी MN में रॉक मैकेनिक्स, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, माइन एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी, स्ट्राटा और ग्राउंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट्स, माइन वेंटिलेशन, माइन एनवायरनमेंट एंड सरफेस, वेस्ट यूटिलाइजेशन, न्यूमेरिकल सिमुलेशन, रिमोट्स, GIS, माइन ऑटोमेशन, माइन प्लानिंग, CBM, CO2 स्टोरेज, अंडरग्राउंड स्टोरेज, माइन एनवायरनमेंट एंड स्टडी,
UMM माइन सेफ्टी और अर्गोनॉमिक्स हैं। 20 प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यानी PMA, वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बिल्डिंग डिज़ाइन, अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन मॉर्फोलॉजी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल प्लानिंग, लैंडस्केप डिज़ाइन, लैंडस्केप प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइन, हाउसिंग, नेबरहुड प्लानिंग, कम्युनिटी प्लानिंग, एज फ्रेंडली नेबरहुड्स और सिटीज़, अर्बन अमेनिटीज़, लेजर अमेनिटीज़, अर्बन गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, लैंड यूज़ प्लानिंग, ग्लोबल सिटीज़, सिटी network, contemporary urbanization, network analysis, vulnerability assessment, environmental psychology, blue-green infrastructure, creative cities, cultural and creative industrial clusters, cultural planning, conservation area planning और architectural design history पर research की जा सकती है। 19 physics and astronomy यानी PH में experimental physics, condensed matter physics, computational soft matter physics और biophysics, astrophysics, high energy and string theory, experimental soft matter physics, astrophysics, gravitational waves, cosmology, theoretical and experimental condensed matter physics, computational and experimental soft matter physics और biophysics में research की जा सकती है। 20 School of Management यानी SM में marketing management, general management, entrepreneurship, human resource management, sustainability और operations management शामिल हैं। PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में से कोई एक होना चाहिए। ME और MTech और MSc इंजीनियरिंग और MPharm और MArch और MPlan और MDes रेलेवेंट डिसिप्लिन में, जिसमें BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग और MSc और BPharm और MCA और BArch और BDes इक्विवेलेंट और ME और MTech और MSc इंजीनियरिंग और MPharm और MArch और MPlan और MDes दोनों में किसी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कम 6.5 CGPA और 60% मार्क्स या फर्स्ट क्लास हो। BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग और MSc और BPharm और MCA और BArch और BDes इक्विवेलेंट रेलेवेंट डिसिप्लिन में, जिसमें CGPA 7.0 और 65% मार्क्स या फर्स्ट क्लास हो। MSc बेसिक साइंसेज में, जिसमें रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में CGPA 7.0 और 65% मार्क्स या फर्स्ट क्लास हो। MBBS और BVSC में, जिसमें CGPA 6.5 और 60% मार्क्स या फर्स्ट क्लास हो। PhD मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए MCom और MBA और MSc और MA इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट और BTech विद 6.5 CGPA और 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास। वैलिड गेट, नेट, GPAT और इक्विवेलेंट स्कोर वाले एप्लीकेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट में मैक्सिमम 0.5 CGPA और 5% मार्क्स तक रिलैक्सेशन मिल सकती है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी लागू होंगे। PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट का पूरे करियर में मिनिमम 6.5 CGPA और 60% मार्क्स या फर्स्ट क्लास होना चाहिए। डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी DRC गेट, नेट, GPAT और अदर नेशनल लेवल फेलोशिप टेस्ट यानी जैसे DST इंस्पायर क्वालिफाई करने या JRF और SRF के रूप में किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने पर 10th +2 BA, BSc, BCom, डिप्लोमा एक्सेट्रा क्वालिफाइंग डिग्री को छोड़कर रिजल्ट्स में से सिर्फ एक में एक्सेप्शन यानी मार्क्स 60% से कम या CGPA 6.5 से कम दे सकती है। रिजर्व्ड कैटेगरी PWD SC ST कैंडिडेट्स को +2 लेवल पर 0.5 CGPA और 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है। इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन्स में लाइफ साइंस को छोड़कर एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने +2 साइंस या डिप्लोमा में मैथमेटिक्स पास किया हो। इंजीनियरिंग और फिजिक्स में PhD प्रोग्राम में एडमिटेड साइंस स्टूडेंट्स ने +3 लेवल पर मैथमेटिक्स पास किया हो। अगर स्टूडेंट्स के पास +3 लेवल पर मैथमेटिक्स नहीं है तो उन्हें नॉर्मल कोर्स रिक्वायरमेंट के अलावा 12 क्रेडिट्स ऑफ 3000 लेवल मैथमेटिक्स और 2000 और 3000 लेवल कंप्यूटर साइंस कोर्सेज यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लिए रजिस्टर करना होगा और हर कोर्स में कम से कम C ग्रेड सिक्योर करना होगा। लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में PhD एडमिशन के लिए स्टूडेंट ने +2 या +3 लेवल पर लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस पास किया हो। प्राइमरी डिसिप्लिन में क्वालिफाइंग डिग्री ना होने वाले स्टूडेंट्स को एडिशनल कोर्स वर्क ऑफ 6 क्रेडिट्स लेना होगा ताकि उन्हें प्राइमरी डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ क्वालिफाई माना जा सके, जब तक कि सेनेट द्वारा एक्सप्लिसिटली एग्जेम्प्ट न किया गया हो। डिपार्टमेंट एप्लीकेशन स्क्रूटनी के दौरान हायर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया सेट कर सकता है, इसलिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना इंटरव्यू के लिए कॉल की गारंटी नहीं देता और न ही इंटरव्यू अटेंड करने से एडमिशन की गारंटी होती है। एप्लीकेंट्स अवेटिंग रिजल्ट्स। थीसिस बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज यानी कि MTech रिसर्च, MS या इक्विवेलेंट के लिए स्टूडेंट को थीसिस सबमिशन की डेट से 1 साल के अंदर फाइनल रिजल्ट सबमिट करने की अनुमति है, लेकिन एडमिशन के समय थीसिस सबमिशन का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूरी है। कोर्स बेस्ड डिग्रीज जैसे कि BTech, MSc, MA, MCom, MBA, MTech रेगुलर के लिए रिजल्ट्स एडमिशन मिलने से पहले पब्लिश हो जाने चाहिए।
एक्सेप्शनल केसेस में अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन के समय तक रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाती है तो क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट 31 जनवरी 2026 तक सबमिट करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके बाद नहीं। क्वालिफाइंग डिग्रीज इन प्राइमरी डिसिप्लिन्स फॉर एडमिशन। डिफरेंट एकेडमिक एलिजिबिलिटी हर डिपार्टमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट और कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। एप्लीकेंट पर यह ओनस होगा कि वो ये प्रूव करे कि उसका डिग्री और स्पेशलाइजेशन और डिसिप्लिन किसी भी मेंशन डिग्री और स्पेशलाइजेशन और डिसिप्लिन के इक्विवेलेंट है। इस मामले में इंस्टीट्यूट का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। 1. बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग (BM), मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच और मेडिसिन और डेंटल और फार्मेसी और वेटरनरी, or a bachelor's degree in engineering any branch or medicine or dental or pharmacy or veterinary with a valid GATE, NET, BET or GPAT score, or an MSc degree in biotechnology or life sciences or physics or chemistry or allied sciences with first class in UG and PG degree with a valid GATE, NET, BET or GPAT score or any national level eligibility test. 2. Civil engineering CE, BTech in Civil Engineering with GATE qualified or BTech in Civil Engineering with MTech in relevant specialization. 3. Chemical Engineering CH, BTech or equivalent or MTech or equivalent in Chemical Engineering or Chemical Technology or Biotechnology or Petrochemical Engineering or Petroleum Technology or Process Control and Instrumentation or Polymer Technology or Biochemical Engineering or Energy Engineering or Nanotechnology or Environmental Engineering and allied branches, or MSc in Chemistry or Physics or Mathematics or Environment or Polymer or Nanoscience and allied discipline with Mathematics in +2 level. फेलोशिप कैटेगरी के लिए बीटेक और एमएससी क्वालिफिकेशंस के लिए वैलिड गेट स्कोर जरूरी है। 4. Ceramic Engineering CR, BTech with GATE or MTech in Ceramic or Metallurgical and Materials or Chemical or Mechanical Engineering or Biomedical Engineering or Nanotechnology or Biotechnology or MSc with GATE in Physics or Chemistry or Material Science or Nanoscience. 5. Computer Science and Engineering CS, BTech with GATE or any national level fellowship or MTech in Computer Science and Engineering or Information Technology or MCA or MSc with GATE or any national level fellowship in Computer Science or Information Technology or Physics or Mathematics and allied. 6. Chemistry CY, MSc in Chemistry or Physics or Biochemistry or Biotechnology or Nanoscience and Nanotechnology or Bioinformatics or Industrial Chemistry or Applied Chemistry or Environmental Chemistry or Food Science and Technology or Nutrition or M.Pharm or BTech or MTech in Chemical or Ceramic or Metallurgical and Materials or Biotechnology. 7. Electronics and Communication Engineering EC, BTech with GATE or MTech in Electronics or Electrical or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication or Electronics and Instrumentation or Applied Electronics and Instrumentation or Electrical and Electronics Engineering or Computer Science and Engineering or Biomedical and Allied or MCA or MSc with GATE or any national level fellowship in Electronics or Computer Science or Information Technology or Physics or Mathematics and allied. 8. Electrical Engineering EE, MTech or ME or MS in Electrical or Electronics or Communications or Computer Science or Instrumentation or Control Engineering or equivalent or Microelectronics or Solid State Technology or MEMS or Nanoscience or Nanotechnology or Material Science or Engineering Physics or equivalent relevant to the area of research or BTech or BE in Electrical or Electronics or Communications or Computer Science or Instrumentation or Control Engineering or equivalent or Microelectronics or Solid State Technology or MEMS or Nanoscience or Material Science or Engineering Physics or equivalent. 9. Earth and Atmospheric Sciences ER, MSc or MTech in Geology or Applied Geology or Geophysics or Environmental Science
or remote sensing or chemistry or physics or atmospheric science or meteorology or oceanography or mathematics or related disciplines in science or BTech or MTech in civil or mining or electronics and computer science engineering. 10. Food process engineering, FP, BTech with MTech in food processing engineering or food technology or agricultural process engineering or post-harvest engineering or agricultural engineering or any other relevant branch of engineering or technology. 11. Humanities and Social Sciences, HS, MSc in relevant subjects or BTech or MTech in any branch of engineering or MBA, UGC NET और JRF qualification वाले candidates को preference मिलेगा. 12. ID Industrial Design, BDES with CAAD or BE or BTech with GATE or MDES or ME or MTech or MArch in any discipline, including ocean engineering or marine engineering or naval engineering, etc. MCA or MSc in any discipline with GATE or NET. 13. Life Sciences LS, MSc in Life Sciences or Botany or Zoology or Microbiology or Biotechnology or Biochemistry or Bioinformatics or MBBS or BVSc or Biophysics or Food Science and Technology, BTech or Integrated MTech in Biotechnology or any branch of Biological Sciences, BPharm or MPharm, MS in any branch of Biological Sciences. 14. Mathematics MA, MSc in Mathematics or Statistics or Computer Science or Information Technology or MCA and first class honors or equivalent in BSc with Mathematics as honors subject or BTech or MTech in any branch of engineering or equivalent. 15. Mechanical Engineering ME, BTech or BE with GATE in any branch, MTech or ME in any branch, MBA with Net and Operations Management Specialization, MSc with GATE in Physics, Chemistry, Mathematics, Life Science, Electronics, Computer Science, Data Science, Big Data, Artificial Intelligence, Environmental Science. 16. Metallurgical and Materials Engineering, BTech or MTech in Computer Science or Metallurgy or Metallurgical and Materials Engineering or Chemical or Mechanical or Production or Manufacturing Engineering or MSc in Physics, Chemistry or Material Science. 17. Mining Engineering BTech or MTech in Mining or Civil or Environmental or Chemical or Electronics or Instrumentation or Computer Science or IT or Mechanical or Metallurgical and Materials Engineering or MSc in Geology or Geophysics or Environmental Science or Remote Sensing or Mathematics or Statistics or Chemistry or Physics. 18. Planning and Architecture PA, BArch with GATE or BPlan with GATE or MArch or MPlan or MCP or MURP or MUP or MTech or MBA Urban Management or equivalent. 19. Physics and Astronomy PH, MSc in any branch of science with mathematics and physics at BSc level or BTech in any branch of engineering. 20. School of Management SM, Master Degree in Technology, Business Administration, Arts, Science, Commerce, Pharmacy or Bachelor Degree in Technology in any discipline or CA Final from ICAI और LLM Law. नोट्स जहाँ किसी डिग्री और क्वालिफिकेशन के लिए रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है वहाँ डिस्टेंस लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स एक्सेट्रा जैसे अदर मोड से प्राप्त डिग्री और क्वालिफिकेशन को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में रिसर्च स्कॉलर्स के सिलेक्शन के लिए बीटेक डिग्री वाले स्टूडेंट्स को एमएससी डिग्री वाले स्टूडेंट्स पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, भले ही बाद वाले के पास एमटेक डिग्री हो। अदर रेलेवेंट बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेनेट या चेयरमैन सेनेट की अप्रूवल ज़रूरी होगी। एक डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स रिलेटेड डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे इंडिविजुअल केस की मेरिट के बेसिस पर कंसिडर किया जाएगा। सिलेक्शन, एकेडमिक रिकॉर्ड, रेलेवेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स रिसर्च इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स और टेस्ट्स एंड और इंटरव्यूज में कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाएगा। इसलिए सिर्फ टेस्ट्स एंड और इंटरव्यू अटेंड करने से एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती। रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत कोई भी फैसिलिटी अवेल करने वाले कैंडिडेट्स को अपने क्लेम के सपोर्ट में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद इशू किया हुआ होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, इंस्टीट्यूट फेलोशिप सभी डिपार्टमेंट्स के पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। फेलोशिप की करंट रेट इस प्रकार है।
पीएचडी प्रोग्राम में एमटेक या एमफार्म या एमआर्क या एमडीईएस या एमडी या एमएस या एमडीएस या एमवीएससी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 37,000 रुपीज़ पर मंथ और प्रोग्रेस सेमिनार क्लियर करने के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 42,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। यही रेट बीटेट या बीआर्क या बीडेस या बीफर्म या एमबीबीएस या बीवीएससी या बीडीएस या एमएससी या एमए या एमकॉम या एमबीए या एमसीए विद अ वैलिड गेट, नेट और जीपैट स्कोर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 37,000 रुपीज़ पर मंथ और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 42,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 42,000 के रिवाइज्ड रेट प्रोग्रेस सेमिनार क्लियर करने पर निर्भर करता है, जो डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इंस्टीट्यूट फेलोशिप का पेमेंट इनरोलमेंट डेट या बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होने की डेट जो भी बाद में हो उससे इफेक्टिव होगा, लेकिन स्कॉलर्स द्वारा सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही दिया जाएगा। फेलोशिप उस कैंडिडेट को अवॉर्ड नहीं की जाएगी जिसकी एज एप्लीकेशन रिसीट की क्लोजिंग डेट पर 32 साल से अधिक हो। एससी और एसटी और कम से कम एक बच्चे वाली वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये एज लिमिट 35 साल है। ये एज रेस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल एजेंसीज या स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स द्वारा दी गई फेलोशिप्स पर लागू नहीं होगा। इंडिविजुअल एक्सटर्नल फेलोशिप्स जैसे कि CSIR नेट या UGC नेट या DST इंस्पायर या RGNF या ICSSR या वुमेन साइंटिस्ट एक्सेट्रा वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए विशेष रूप से इनकरेज किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस अन्य कैंडिडेट्स की तरह ही रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप की रेट और पेमेंट मोड स्पॉन्सर और फंडिंग एजेंसी के रूल्स के अनुसार होगा। इंपॉर्टेंट नोट: अगर कोई स्टूडेंट इंस्टीट्यूट फेलोशिप या प्रोजेक्ट फेलोशिप के साथ प्रोग्राम कंप्लीट किए बिना मिड सेशन में अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट छोड़ देता है तो उसे फेलोशिप में दी गई पूरी अमाउंट इंस्टीट्यूट छोड़ने से पहले वापस करनी होगी। उसे इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक वो फेलोशिप पूरी तरह रिफंड नहीं कर देता। प्रोजेक्ट फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स को रिफंड करने की ज़रूरत नहीं हो सकती है अगर स्पॉन्सर के रूल्स उन्हें फेलोशिप रिफंड किए बिना प्रोजेक्ट छोड़ने की अनुमति देते हैं। एक्सटर्नल फेलोशिप्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स पर स्पॉन्सर और फंडिंग एजेंसी के रूल्स लागू होंगे। नंबर 2, सभी स्टूडेंट्स चाहे फेलोशिप के साथ या बिना या कोई और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा हो, उन्हें अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स को टीचिंग और रिसर्च एक्टिविटी में असिस्ट करना जरूरी है। उन्हें ट्यूटोरियल और लेबोरेटरी क्लासेस लेने या स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स या अन्य R&D एक्टिविटीज़ में असिस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, जैसा कि HOD या कोऑर्डिनेटर द्वारा असाइन किया जाए। नंबर 3, हॉस्टल अकोमोडेशन एडमिटेड कैंडिडेट्स को अवेलेबिलिटी के आधार पर दी जाएगी। नंबर 4, एक्सटर्नल फेलोशिप्स जैसे नेट JRF, CSIR, DST इंस्पायर और प्रोजेक्ट फेलोज को HRA मिल सकता है अगर सेड एजेंसीज या स्पॉन्सर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप वाले फुल टाइम स्टूडेंट समेत अन्य HRA के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फीस स्ट्रक्चर: PhD प्रोग्राम में एडमिशन के समय फीस का विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन फ़ी जो कि 1 टाइम है 2,500 रुपीज़ है। ट्यूशन फ़ी 7,500 है जो कि SC/ST स्टूडेंट्स के लिए निल है। अदर फीस एग्जाम, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा 3,000 रुपीज़ है। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी 2,000 रुपीज़ है। मेडिकल फ़ी 2,000 रुपीज़ है। हॉस्टल सीट रेंट 5,000 रुपीज़ है। कॉशन मनी जो कि 1 टाइम रिफंडेबल है 10,000 रुपीज़ है और हॉल एस्टैब्लिशमेंट फ़ी 5,000 रुपीज़ है। मेस एडवांस 30,000 रुपीज़ है। इस तरह से टोटल फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी 67,000 रुपीज़ है और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 59,500 रुपीज़ है। सेकेंड सेमेस्टर में ट्यूशन फ़ी 7,500 रुपीज़ है जो कि SC/ST स्टूडेंट्स के लिए निल है। अदर फीस 3,000 रुपीज़ है। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी 2,000 रुपीज़ है। मेडिकल फ़ी 2,000 रुपीज़ है। हॉस्टल सीट रेंट 5,000 रुपीज़ है। हॉल एस्टैब्लिशमेंट फ़ी 5,000 रुपीज़ है और मेस एडवांस 30,000 रुपीज़ है। इस तरह से टोटल सेकेंड सेमेस्टर फ़ी 54,500 रुपीज़ है और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 47,000 रुपीज़ है। हॉस्टल सीट रेंट और हॉल एस्टैब्लिशमेंट फ़ी हॉस्टल टाइप के अनुसार लागू होंगे। कोर्स की बाकी सेमेस्टर्स कंप्लीशन तक के लिए फीस सेकेंड सेमेस्टर फीस के समान रहेगी जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट ना किया जाए। फी रिफंड के रिगार्ड्स में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के बाद पूरा प्रोग्राम कंप्लीट किए बिना इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाता है या खुद ही विड्रॉ या लीव करता है तो कॉशन मनी डिपॉजिट समेत सभी फीस फॉरफिट कर ली जाएंगी। मेस एडवांस अगर पे किया गया है तो ड्यूज कटने के बाद रिफंड किया जा सकता है। ये क्लॉज फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्मल रजिस्ट्रेशन और क्लासेस शुरू होने से पहले भी एप्लीकेबल है। स्पॉन्सर्ड और लोकल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स: इंस्टीट्यूट, रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्री, R&D इंस्टीट्यूशंस
और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कैंडिडेट्स का स्वागत करता है। एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट से उम्मीद की जाती है कि वो प्रोग्राम कंप्लीट होने तक या इंस्टीट्यूट में शुरू होने से कम 3 साल तक फुल टाइम इंस्टीट्यूट में काम करेगा। डिजर्विंग केसेस में अगर उसके एम्प्लॉयमेंट प्लेस पर फैसिलिटीज एग्जिस्टेंट है और उसकी जॉब असाइनमेंट रिसर्च प्रॉब्लम से मैच करती है तो उसे मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट आमतौर पर 6 मंथ्स टू 1 ईयर सैटिस्फाई करने के बाद एम्प्लॉयमेंट प्लेस पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है। लोकल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो राउरकेला और उसके आसपास काम करते हैं और जिनकी जॉब परमानेंटली नॉन ट्रांसफरेबल है के पास अपने जॉब असाइनमेंट में पर्याप्त टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो प्रोग्राम को जारी रख सकें। उनके वर्किंग आवर्स को स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबली एडजस्ट किया जाना चाहिए ताकि वो NIT राउरकेला में प्रति सेमेस्टर कम से कम 120 दिन और 500 घंटे तक अपनी स्टडीज़ पर काम कर सकें। अगर स्कॉलर के वर्क प्लेस में को सुपरवाइजर है, उसका रिसर्च वर्क उसके जॉब से रिलेटेड है और वर्क प्लेस में एडिक्वेट रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये रिक्वायरमेंट 25 डेज और 75 आवर्स हो जाएगी। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ने स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल की कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट कर ली हो। ये 2 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस 30 नवंबर 2025 तक काउंट की जाएगी। स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वो NIT से अपनी डिग्री कंप्लीट होने पर एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद कम से कम 3 साल तक अपने स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देंगे। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार किसी भी डिसिप्लिन के PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी एंड प्रोसीजर। एलिजिबल कैंडिडेट्स अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन eapplication.nitrkl.ac.in पर सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि इस एडवर्टीजमेंट और ऑनलाइन पोर्टल में दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ SBI कलेक्ट के माध्यम से पे करें। कोई और मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। पेमेंट के लिए एप्लीकेंट को SBI कलेक्ट सर्च करना होगा, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन उड़ीसा, फिर डायरेक्टर NIT राउरकेला, उसके एप्लीकेशन फ़ी PhD और EPTP सिलेक्ट PhD 500 रुपये सिलेक्ट करना होगा। SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर को नोट कर लें। एक बार पे की गई एप्लीकेशन फ़ी किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म eapplication.nitrkl.ac.in पर फिल करें, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करें और होम पेज पर दिए गए अपडेट एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स लिंक में SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर एंटर करके एप्लीकेशन सबमिट करें। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते समय स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी सबमिट करना जरूरी है। एप्लीकेंट्स को हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म या कोई और डॉक्यूमेंट NIT राउरकेला को भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उन्हें इंटरव्यू के समय साइंड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, सभी सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज़ का एक सेट और ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट सिर्फ स्पॉन्सर्ड और लोकल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए सबमिट करना होगा। उन्हें वेरिफिकेशन के लिए HSC ऑनवर्ड्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी प्रोड्यूस करने होंगे। टेंटेटिव शेड्यूल। PhD एडमिशन का टेंटेटिव शेड्यूल इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 17 नवंबर 2025 मंडे है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी इन द वेबसाइट 21 नवंबर 2025 फ्राइडे को होगी। टेस्ट एंड और इंटरव्यू जो कि NIT राउरकेला में ऑफलाइन होगा 1 दिसंबर 2025 मंडे को है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू इन द वेबसाइट 8 दिसंबर 2025 मंडे को होगी। एडमिशन 15 दिसंबर 2025 मंडे को होगा और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन या स्टार्टिंग ऑफ क्लास और रिसर्च वर्क 1 जनवरी 2026 थर्सडे को शुरू होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट वेबसाइट nitraurkela.ac.in पर डिस्प्ले की जाएगी और उन्हें कोई पोस्टल इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा। एप्लीकेंट से अनुरोध है कि फर्दर अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट वेबसाइट के नोटिस बोर्ड सेक्शन को रेगुलरली विजिट करते रहें।